নর্মদে হর প্রণাম। মা নর্মদার কোলতানে মুখরিত এই পুণ্যভূমি ওমকারেশ্বর। কিন্তু আপনি কি জানেন, এই পবিত্র ভূমির নির্জনে এমন এক তপভূমি আছে যেখানে পাথরও কথা বলে, যেখানে ত্যাগের এক এমন ইতিহাস লেখা আছে যা শুনলে আপনার গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাবে। আজ আমরা আপনাদের শোনাব সেই অমর ঋষি মার্কণ্ডের কাহিনী, যিনি একটানা ৪০ বছর ধরে মা নর্মদাকে পরিক্রমা করেছিলেন। শুধু মূল নদী নয়, নর্মদাতে এসে মেশা প্রতিটি ছোট বড় নদী নালাকেও তিনি ভালোবেসে ছুঁয়েছিলেন। তার সেই কঠিন সাধনা আর ত্যাগের কাহিনী আজও মিশে আছে এই আশ্রমের বাতাসে, যেখানে মা অন্নপূর্ণার অক্ষয় ভাণ্ডার আজও খোলা আছে প্রতিটি তৃষ্ণার্ত আত্মার জন্য, যেখানে আজও গুরু পরম্পরায় চলছে প্রাচীন অন্নসেবার এক অলৌকিক ধারা। যুগ যুগ ধরে কোনো পরিক্রমাবাসী এখান থেকে অভুক্ত ফিরে যাননি। স্থাপত্যের অদ্ভুত কারুকার্য, ভগবানের বিশাল বিশ্বরূপ দর্শন আর ঋষি মার্কণ্ডের সেই অমর উপস্থিতি। আজ আমরা এক আধ্যাত্মিক যাত্রায় বেরোব, যা আপনার জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ এই পবিত্র অনুভূতি আপনার হৃদয়কে স্পর্শ করবেই। হর হর শঙ্কর জয় শিব শম্ভো, জয় শিব শঙ্কর হর হর শম্ভো, হর হর শঙ্কর জয় শিব। নর্মদে হর ভারতের পবিত্র আধ্যাত্মিক মানচিত্রে ওমকারেশ্বর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কিন্তু এই পুণ্যভূমির গভীরে লুকিয়ে আছে এক পরম তপশ্চর্যার কাহিনী, যেখানে নদীর কলতাতানে আজও শোনা যায় এক অমর ঋষির নাম, ঋষি মার্কণ্ড, যিনি দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে শুধু মা নর্মদাকে নয়, নর্মদার প্রতিটি শাখা নদীকেও পরিক্রমা করেছিলেন। আজ আমরা আপনাদের নিয়ে যাব সেই পবিত্র তপভূমিতে, যেখানে যুগ যুগ ধরে মা অন্নপূর্ণার আশীর্বাদে কোনো ভক্ত অভুক্ত ফেরে না। পুরাণ বলে, ঋষি মার্কণ্ড ছিলেন পরম শিবভক্ত। তার এই মার্কণ্ড আশ্রম অতি প্রাচীন। ভাবুন তো, একটানা ৪০ বছর মা নর্মদাকে ঘিরে তার সেই পরিক্রমা ছিল এক অনন্য কৃচ্ছ সাধন। তিনি কেবল নর্মদা নয়, নর্মদাতে এসে মেশা প্রতিটি ছোট বড় নদী ও নালাকেও যথাযথ ভক্তিভরে পরিক্রমা করেছিলেন। কেন জানেন? কারণ তার কাছে নর্মদা কেবল নদী নয়, স্বয়ং ঈশ্বরী। এই কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ তিনি লাভ করেছিলেন অমরত্ব এবং স্বয়ং মহাদেবের আশীর্বাদ। ওমকারেশ্বরের এই প্রাচীন মার্কণ্ড আশ্রমে পা রাখলে আপনি কেবল এক মন্দিরে প্রবেশ করবেন না, আপনি প্রবেশ করবেন সহস্র বছরের পুরনো এক জীবন্ত ইতিহাসে। আজও এই আশ্রমের বাতাসে সেই অমর ঋষির তপশ্চর্যার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের আসল রূপ আর আধ্যাত্মিকতার গভীরতা অনুভব করতে হলে এই তপভূমিতে আপনাকে আসতেই হবে। ঋষি মার্কণ্ড ৪০ বছর ধরে যেভাবে মা নর্মদাকে পরিক্রমা করেছেন, সেই ত্যাগ আর নিষ্ঠার কাহিনী বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া আমাদের সংকল্প। আসুন, মা নর্মদার এই পবিত্র মাহাত্ম্য আর ঋষি মার্কণ্ডের অমর কৃপা আমরা ভাগ করে নিই প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে। কারণ নর্মদা কেবল নদী নয়, নর্মদা আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভক্তি। হর হর শম্ভো, হর হর শঙ্কর জয় শিব শম্ভো, জয় শিব শঙ্কর হর হর শম্ভো, হর হর শঙ্কর জয় শিব শম্ভো, জয় শিব শঙ্কর হর হর শম্ভো, হর হর শঙ্কর জয় শিব শম্ভো, জয় শিব শঙ্কর। এই আশ্রমে প্রবেশ করলেই আপনি দেখতে পাবেন ঋষি মার্কণ্ড কর্তৃক স্থাপিত সেই অতি প্রাচীন শিবলিঙ্গ। পাথরের গায়ে নিপুণ কারুকার্য যেন কথা বলে ওঠে। প্রতিটি খোদাই করা মূর্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে হাজার বছরের ইতিহাস। এখানে এলে সময়ের চাকা যেন থমকে যায়। ভক্তরা যখন এখানে মস্তক নত করেন, তখন তারা কেবল এক শিবলিঙ্গকে নয়, বরং ঋষি মার্কণ্ডের সেই ৪০ বছরের সাধনার শক্তিকে স্পর্শ করেন। হর হর শম্ভো, হর হর শঙ্কর জয় শিব শম্ভো, জয় শিব শঙ্কর
हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो। ঋষি মার্কণ্ড কেবল সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরম করুণাময়। তিনি এখানে মা অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং একটি পবিত্র সংকল্প নিয়েছিলেন, এই পথে আসা কোনো পরিক্রমাবাসী বা তীর্থযাত্রী যেন অভুক্ত না থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হল, সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গুরু পরম্পরায় এই সেবা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়নি। আজও এখানে বিনামূল্যে থাকা এবং খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। মায়ের ভাণ্ডার এখানে অক্ষয়, আর সেবার হাত অপরিসীম। এই মন্দিরের অন্যতম বড় আকর্ষণ হল ভগবানের সেই অলৌকিক বিশ্বরূপ মূর্তি, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। এর পাশাপাশি নবদুর্গার ৯টি রূপের দর্শন আপনার মনকে এক অপার্থিব শান্তিতে ভরিয়ে দেবে। এই মূর্তিশৈলী এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশ আপনার হৃদয়ে ভক্তির এক নতুন জোয়ার আনবে। মনে হবে এই তো সেই জায়গা যেখানে আত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो। ওমকারেশ্বরের এই মার্কণ্ড আশ্রম কেবল একটি স্থান নয়, এটি এক জীবন্ত তীর্থ। এখানে ঋষি মার্কণ্ডের অমরত্ব, মা অন্নপূর্ণার মমতা এবং মহাদেবের আশীর্বাদ একই সুতোয় গাঁথা। আপনি যদি কখনো ওমকারেশ্বর আসেন, তবে এই আশ্রমে এসে অন্তত কিছুক্ষণ সময় কাটাবেন। মা নর্মদার হাওয়া আর এই পবিত্র আশ্রমের ধুলো আপনার জীবনের সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে দেবে। বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাক এই পবিত্র কাহিনী। আসুন আমরাও একবার মনে মনে বলি, নর্মদে হর, জয় মা অন্নপূর্ণা। जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो जय शिव शङ्कर हर हर शम्भो हर हर शङ्कर जय शिव शम्भो। জয় হো মা নর্মদা, জয় মা রেবা। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মা নর্মদার সেই চিন্ময় রূপ, যা কেবল দর্শন করলেই মন পবিত্র হয়ে যায়। ভক্তের হৃদয়ে সবসময় এই প্রার্থনাই থাকে, মায়ের দর্শনের পাশাপাশি যেন কোনো সিদ্ধ তপনিষ্ঠ মহাত্মার দর্শন পাওয়া যায়। মায়ের কৃপায় আজ আমরা নর্মদা তীরে এক মহান সন্তের সান্নিধ্য লাভ করেছি, যার দীর্ঘ সাধনা মা নর্মদায়। আজ আমরা এই মহাপুরুষের মুখ থেকেই শুনব নর্মদার মাহাত্ম্য,
এবং জানব এই অস্থির সংসারে শান্তির আসল পথ কোনটি। আসুন হৃদয়ে ভক্তি নিয়ে আমরা এই ত্যাগী তাপসের কথা শ্রবণ করি এবং আমাদের জীবনকে ধন্য করি। নর্মদে হর। बता देगा। नर्मदा माई तो क्या है कि शंकर भगवान का रुद्र अवतार है, अमरकंठ से प्रकट हुई है। शंकर भगवान ने स्वयं प्रकट करके और उनको कलयुग में मानव का अधिकार, मतलब मानव को तारने का, पुण्य लगने का मतलब वरदान दिया है। इसलिए नर्मदा माई का दर्शन मोक्ष है। नर्मदा जी के जैसे अपन दर्शन कर रहे हैं जी। दर्शन ही मोक्ष है, पर आत्मा से और अच्छा परमात्मा का नाम लेके आत्मा से दर्शन कर लो तो भी बहुत। पर वो लोग बोलते हैं कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने से क्या मिलता है? नहीं, वो बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोलना क्या है, ऐसा है किसी को कुछ चाहना नहीं चाहिए। जी। भाई अपन काम करते तो किसी से क्या करते हैं, भैया इतना काम कर दूंगा, जी। आप क्या पैसे दोगे, क्या लालच रहती है। हाँ। वही भगवान के बारे में है ना, कोई लालसा नहीं रखे तो सब कुछ मिलता है। और लालच रख के कोई काम करा भगवान का, हाँ। कि मैं पूजा कर रहा हूँ, कि मैं दर्शन करने आया हूँ, जो मेरे को ये लाभ मिले वो लाभ मिले, तो असंभव रहता है, संभव नहीं रहता। हाँ, अपने को बताओ कि मेरे को ये संकट है भगवान, ये थोड़ा करो, ये वो अपन विनती करो। पर अपन किसी को बोल के भी करो यार भगवान का नाम लेना है मेरे को, क्या मिलेगा वो क्या मिलेगा, तुमने बोल तो लोग प्रश्न भी उठाते हैं, हैं। जो बहुत लोग नर्मदा जी के बारे में जानता नहीं, वो लोग प्रश्न उठाता है। तो नर्मदा जी जो है, नर्मदा माई की परिक्रमा तो क्या है, वैराग्य के लिए होती है। जी। और वो मन से बढ़िया पहले तो गुरुमुखी होना चाहिए, जी। दूसरी बात संस्कार भी होना चाहिए, जी। नर्मता भी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। संस्कार अगर हुआ और उनके ऊपर वाले की कृपा हुई तो अकेले ही परिक्रमा करे, 2 रोटी अपने हाथ से बनावे खावे, शांति से जहाँ मिल जाए वहाँ भी खा ले। पर वो किसी बात का संग्रह करना, किसी से पैसा लेना, ये करना, जैसे हमें आश्रम में किसी ने दक्षिणा दी तो हमने रखी, क्यों कि हमें सब सेवा में लगता है, दाल लाना है, आटा है, वो ये सभी सेवा में कुछ न कुछ तो खरीद के सब लाना ही पड़ता है। यहाँ जब आश्रम में रहेगा ना, वो आदमी को जीरे से लगा से तेल से लगा के सब आश्रमदारी को, और जो भ्रमण करता है चाहे जाए आसन लगा के सो गया, 2 रोटी कहीं भी मांग के खा लेगा। और अपने यहाँ तो कोई आ जाएगा तो खिलाना पड़ेगा कि टाइम हो गई भोजन की, जैसे अभी आ गया तो अपने को शाम को पूछना पड़ेगा, महाराज जी भोजन प्रसादी लो, चाय लो, चाय की टेम जल लो, तो अपने को आश्रमदारियों को लगता है। अब नर्मदा परिक्रमा करने वाले को वैराग्य होने के लिए कोई लालच नहीं रखना चाहिए। वैराग्य होगा, वैराग्य होने के बाद में क्या है कि अगर कृपा रही और कुछ बोलना नहीं, कुछ चालना नहीं, कोई कामना नहीं करना, अपने को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा माया लोभ में किसी की कोई पड़ता नहीं है, उसी को दर्शन देती है। जी। और बाकी फिर कुछ भी बोला करे कि मैया बह रही है कि जल बह रिया है, क्या होगा क्या नहीं, तो वो उसकी आत्मा जाने, वो जाने। पर वो संतों के लिए सही है, जिसको वैराग्य प्राप्त होता है, वैराग्य होने से वो संत बन जाता है, उसको सारा ज्ञान होता है। जगह जगह आश्रम में को भी कैसा महात्मा है, कहाँ पे कैसा महात्मा है, उसके पास बैठे 1-2 दिन रुके, जो भी अपने से सेवा बन गई, सेवा कर दी, झाड़ू बुआरा ये वो बर्तन वर्तन, वो अपने को ज्ञान देगा, उसका ज्ञान मिलेगा, वो आगे वाले का उसका। तो ज्ञान लेने से और भजन करने से वैराग्य होता है नर्मदा माई की कृपा में। ऐसा थोड़ी है कि भगवान का नाम लेने में। प्रभु, आपने एक बात बोली कि गुरुमुखी होना चाहिए, तो आप हम तो साधारण मनुष्य है, हमारा आंखों में सुदृष्टि नहीं है, जैसे सदगुरु को पहचाने। हाँ। तो सदगुरु को पहचानने का मार्ग क्या है गुरुजी? भाई मंत्र आपको कभी पेपर में देखा हो तो ठीक, नहीं तो मंत्र तो लो भजने का। सतगुरु नहीं बनाओ तो नहीं, से मंत्र तो भजने का लेना पड़ेगा, भजन करने का मंत्र तो लेना पड़ेगा आपको। वहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री राम, तो श्री राम तो आपने लिखा हुआ देख के ले लिया, किसी गुरु मान के लेना पड़ेगा ना किसी से। अच्छा। अब उसको अपन पहचाने नहीं पहचाने, वो सभी का बस का रोग नहीं है, जो भाग्य में है वो मिल जाता है। हाँ। जैसे नारद जी को भगवान जी ने बताया कि तू गुरु बना ले, सुबह कोई भी तेरे को मिले आता हुआ रास्ते में
तो बना लेना बोलो गुरु, तू गुरुमुखी नहीं है। तो वो नारायण स्वयं गुरु बन रहे थे, पर उसने एक बार देखा कि उधर से मछुआरा बहुत सारी मच्छी जाल में लपेट के वो गिरती पड़ती आ रही थी। मछुआरे का काम मच्छी मारना। हाँ, वो लेके आ रहा था, तो सुबह सुबह नारद जी रास्ते में जा रहे थे, गुरु जी मिलेंगे तो दीक्षा लूँगा, गुरुमुखी हो जाऊँगा, दीक्षा लूँगा। वो मछुआरा मिला, अरे बोले इससे कैसे दीक्षा लूँ, बोले इससे गुरु मंत्र कैसा लूँ, ये तो गंसारी मंत्र, ये क्या देगा, ये तो बहुत बुरा है। बोले रहने दो। ऐसे करके 2 बार का उसने नहीं करा। तो भगवान जी के पास गया, बोले ते हुआ नारद जी आपका काम? तो भगवान को नारद जी बोले नहीं महाराज, मेरे को तो कोई गुरु नहीं मिला। नहीं मिला होगा, अरे एक मिला था जो मछुआरे, बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंसी थी और उसको मैं कैसे गुरु बनाऊँ? अरे तो गुरु बना लेना था, स्वयं मैं ही था। बोले तू तो ऐसा करा तुमने। बोले फिर भगवान ने उसको गुरु मंत्र दिया था। अपने को क्या कोई अच्छा गुरु मिल जाए ले लो। नर्मदा जी की परिक्रमा करो या वैराग्य में भजन करना है, साधु बनना है, सब अलग बात है, सब अलग बात है। जी गुरु जी। तो उसके भी कृपा होना चाहिए। जी। संसार में इतने मनुष्य हैं, किसी को भगवान का और साधु के पास बैठने का टाइम थोड़ी है कि कुछ सुने, कि कुछ पूछें कि महाराज जी जी। हमारा क्या होगा, हम पढ़े हैं लिखे हैं, तो हम पढ़े लिखे का ज्ञान क्या होता है और आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, और धर्म का संस्कार, धर्म का संस्कार कैसे मिलता है, और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। और जो ये पढ़ाई लिखाई गाड़ी घोड़े दौड़ते हैं, ये कमाई खाने का धंधा है ये सब। जैसे सोने चांदी की दुकान लगा ली तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी थोड़ी हो गया, कोई बहुत बड़ा वो परमात्मा से थोड़ी मिल जाए। तो ये पास MBA पास हो गया तो संसार में किसी को यही बताएगा, नौकरी कर लेगा, कलेक्टर बन जाएगा, कलेक्टर से ऊपर राज्य में बनता है, कितना भी बड़ा अफसर ही बन जाएगा, पर वो उसने गुरु बनाया और उसने पढ़ाई लिखाई करी, तो वो यहाँ संसार में ये बन के दिखा देगा अफसर। पर जब कोई साधु संत या गुरु के पास जाएगा तो वो क्या बताएगा? जिस परमात्मा ने जीव मात्र को बनाया है, यहाँ धरती भेजा है, उसका मार्ग बता देगा कि ये जो है पढ़ाई लिखाई करके और व्यवसाय और बड़ा आदमी बन के, उसका मतलब जीविका चलाने के लिए ये धंधा हो जाएगा, आराम से वो तो ऐश करके खा लेगा। पर जब भगवान का मार्ग रास्ता बता देंगे तो वो तो भगवान उसको मिलेंगे भजन करने से। और सबसे बड़ी पढ़ाई ये फ्री में मिलती है, और वो करने से परमात्मा, साधु क्या है, परमात्मा का रास्ता का ज्ञान बताता है। परमात्मा के जी। संत लोग क्या करेंगे? परमात्मा का ज्ञान बताएंगे कि भाई परमात्मा कैसे मिलेंगे। वो परमात्मा तुम्हें इस शरीर जो मनुष्य त्याग करके जाओगे तो कुछ तुमको मिलेगा आगे। और ये पढ़ाई लिखाई करके नौकरी चाकरी दुनियादारी का धन दौलत यहाँ इकट्ठा करोगे लालू प्रसाद बन के, तो ये तो यहीं रह जाएगा, भोगना करने पड़ेगा। जी। और ये अगर परमात्मा का ध्यान करोगे और मनुष्य जीवन है, सब कुछ करोगे, आटे में दाल में आटे में नमक समाए इतना करके और परमात्मा का नाम लोगे तो परमात्मा कुछ प्राण को, और शरीर जब शरीर से प्राण जाएगा तो कुछ न कुछ तो करेगा जी। जब वो मिलेगा। और भगवान का भजन करने से अगले अवतार अच्छे घर में और जन्म मिलेगा, साधु संत बनेगा, वो भगवान भजन करेगा, पूजाएगा। और क्या, परमात्मा का ज्ञान जाने का रास्ता ये, परमात्मा मिलने का रास्ता। कोई अच्छे संतों से संस्कार सीखो, भजन सीखो और गुरु मंत्र का जाप करो, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। संतों से आध्यात्मिक का ज्ञान मिलता है। आध्यात्मिक का ज्ञान जो सरस्वती है, सरस्वती जिसके कंठ में बैठ जाती है, सरस्वती खड़ी है, ये सरस्वती बैठी है। और लक्ष्मी जो है बहुत चंचल है, वो खड़ी रहती है एकदम। अभी पैसा आ गया ना, ये टिकेगा थोड़ी, इसको मतलब लक्ष्मी कहते हैं। नाट जाएगा। मैं यहाँ जबरन में नहीं, मेरे पास नहीं होता तो आपने दिया तो मैं भागूंगा, जाऊंगा दुकान पे, ये लाऊंगा वो लाऊंगा, दौड़ाएगा। हरिओम हरि लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी दौड़ाएगी और सरस्वती बिठाएगी। बैठकर ज्ञान से भजन करोगे,
सरस्वती उसी का नाम है, ज्ञान भगवान का जी प्राप्त होना और परमात्मा की भी इच्छा होना। जी, जिसपे जी। परमात्मा की कृपा होती है वही भजन करता है, सभी थोड़ी करते हैं। हर आदमी इंसान भजन नहीं कर पाता है, भजन वही करता है जो विरला। जैसे राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ जी के चेले बने, जिसके बाद में गोपी चंद बना कहाँ, उसकी माताजी ने उसको ज्ञान दिया और गुरु उसको अमर करवाया। उसकी माँ ने बोला कि बेटा तेरा नाम अमर हो जाएगा तो साधु बन जा, जाओ भजन करो। 4-5 प्रकार के उसने ज्ञान बताए थे, सोने का, बैठने का। अच्छा बोले सोने का, बोले बहुत बड़े बड़े अच्छे राजमहल गलीचा मिलेगा। तो बोलो तो कांटे ऐसे ज़मीन पे, बोला घूम घूम के थक जाओगे, ऐसे ही नींद खूब आ जाएगी। यहाँ राजगद्दी में तुमको नींद नहीं आती, ऐसे ही वहाँ पे आएगी। भूख का बोले वो तो 56 प्रकार के भोग मिलेगा तुमको। तो अच्छी भूख लगेगी, तुम सूखे टिक्कड़ खाओगे तो भी तुमको 56 प्रकार का भोग से भी ज़्यादा जी अच्छा लगेगा। जैसे आप भ्रमण कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आपको 2 टाइम रोटी आप सुबह से शाम तक पाई नहीं है और कोई भूख अच्छी लगी, कोई सूखा सूखा रोटी दे जाएगा, वही आपको खूब भाएगा। भन्नाट खा लोगे और तो पेट पर आ गया, तृप्त हो गया। 56 भोग में आराम करोगे, इसमें कोई 56 भोग ला के रखेगा तो भी आराम है, इसमें 56 भोग की भी भूख ही नहीं लगेगी। अरे मेरे को कहते हैं ना, अरे यार आज तो इच्छा नहीं है खाने की, क्योंकि वो उसके पास तो ऐसा आराम हो गया ना, तो इच्छा कहाँ से होगी। चलेगा फिरेगा, घूमेगा खूब और भजन करेगा भूखे प्यासे, उससे भूख लगेगी। भूख लगेगी तो भोजन मैंने रूखा सूखा भोजन भी 56 भोग से भी ज़्यादा उसको मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। क्या है कि परमात्मा का तो ज्ञान किसी किसी को ही प्राप्त होता है। जी सबको जी नहीं जी होता है। जी। परमात्मा साधु संत के दर्शन तो भाग्य से प्राप्त हाँ, होता है गुरुजी। और सभी संतों के और ब्राह्मणों के सम्मान सभी लोग थोड़ी कर पाते हैं। सभी को भगवान आज्ञा नहीं देता है कि आप सम्मान करो, क्योंकि वो तो उसके धंधे में और उसमें ही लगा रहता है। अरे मैं चलता हूँ, मेरा काम है, अरे यार मैं चलता हूँ, ऐसे ही करते करते जीवन चला जाता है और जो लकड़ी में होली फूंक देते हैं, क्योंकि कर नहीं कुछ पाते। एक दिन होली फूंक देते हैं, ये कर वो कर। जैसे मनुष्य आया, अभी अनाज जैसे पका, अभी गेहूँ निकले थे ऊपर आए, अभी उसको क्या करेंगे, खाने वाले खा जाएंगे, बीजे ही रखने वाले बीजे रख लें, उसको ले जाके फिर धरती में डालेंगे। अपन ने तो डाले गेहूँ, गया अंदर धरती में बीज गया ना, तो अपन ने बीज डाला तो वो बाहर आएगा अंकुर फूट के, पर वो अनाज जो अपन ने बीज डाला था, बीज तो नष्ट हो गया। तो अपन जैसे आप लोग गृहस्थी लोग, ये मनुष्य अवतार है, आदमी नर और नारी, तो नर भी नष्ट हो जाता है, नारी भी नष्ट हो जाती है, बीजाई दूसरी तैयार हो जाता है, ये तो नष्ट हो जाते हैं, उनकी संतानें होती है और ये बेचारे उनको समय हो जाता, चले जाते हैं। वैसा अनाज का भी धरती में गया, नष्ट हो गया, तो नष्ट तो होना ही है, नहीं तो धरती में जगह कहाँ रहेगी। उसमें सिस्टम बनाया है। जैसे आज अपन हैं, मैं मेरे चेले बना लूँगा, आपके कोई बच्चे होंगे, आप चले जाओगे, आपके बच्चे रहेंगे धरती पे। ऐसा मतलब अनाज का एक बार बीज बैठ गया, जैसे कि एक ज्वार का दाना मैंने डाल दिया, तो उसमें कम से कम 100 दाने आ जाएंगे, 100 दाने में से पड़े। जैसे ये धरती का भगवान ने रचना की है बढ़ने का, वो अंकुर तो ये अन्न जो कण है वो तो खत्म हो जाएगा, कण तो चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अंकुर फूट के दूसरा आ जाएगा। ऐसा कैसा सिस्टम परमात्मा ने बनाया है, इतने बड़े सिस्टम 4 युगों से चला रहा है धरती जी। जीवन। पर अभी कलयुग है, कलयुग में प्रभु जी ये क्या है बता दीजिए ना सामने। इस सामने समाधियाँ हैं संतों की। अच्छा, संत की समाधि है। हाँ, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की समाधि है। अच्छा। नाथ संप्रदाय हाँ। दर्शनी साधु जो होते हैं ना, हाँ कुंडलधारी, हाँ 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 यहाँ कुंडल डले रहते श्रीनाथ जियों की समाधि जी। है। अच्छा নর্মদা তীরের এই নির্জনতা আপনাকে এক আদিম রহস্যের মুখোমুখি দাঁড় করাবে। দেখুন, এই পবিত্র সমাধিগুলো, এগুলো নাথ সম্প্রদায়ের সেই সিদ্ধ মহাত্মাদের, যারা মৃত্যুর রহস্য শেখে জয় করেছিলেন। এখানে বাতাস কথা বলে, আর প্রতিটি পাথর সাক্ষী দেয় কোনো এক অলৌকিক তপশ্চর্যার। জয় মা নর্মদা। কেন এই যোগীরা নর্মদা তীরকেই বেছে নিতেন তাদের শেষ বিশ্রামের জন্য?
এই সমাধিগুলোর নীরবতা আপনাকে এক গভীর সত্যের সন্ধান দেবে যা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অতীত। जय हो प्रभु। তপভূমি নর্মদার আজকের এই পর্বে আমরা উকি দিয়েছি সেই রহস্যময় জগতে যেখানে জীবন আর মৃত্যু মিলেমিশে এক হয়ে যায়। নর্মদে হর। मैं तो एक बंगाली बाबा के साथ में रहता था। अच्छा। उसको डॉक्टर साहब कहते थे, होम्योपैथी डॉक्टर साहब थे होम्योपैथी के। अच्छा। तो वो बहुत कुछ नर्मदा माई की परिक्रमा करके हाँ। और बहुत कुछ आध्यात्मिक ज्ञान वाले महाराज थे। वो मेरे से सेवा में कर देता था उनकी, वो बढ़िया उनको नर्मदा माई ने दर्शन दिए। दर्शन दिया। हाँ, उनका एक यहाँ खेड़ी घाट में भी मकान है, एक वहाँ पर है कुटिया बनाई हुई, उनके पास अन्नू दीदी है करके। वो स्वयं वहाँ ज़्यादा नहीं रहते, कभी सुलपानेसर जाड़ी, कभी हाँ। सलकनपुर, कभी अमरकंट, ऐसे रहते हैं। ये झूला पुल के आगे एक कुटिया बनी है, अच्छा। इधर के साइड में झूला पुल जाओ और ठीक थोड़ा सा देखना, अन्नू दीदी करके नाम है। মা নর্মদার এই পবিত্র কোল আর ঋষি মার্কণ্ডের অমর ত্যাগ এই কেবল তথ্য নয়, এ এক আধ্যাত্মিক পরম প্রাপ্তি। আমাদের এই ছোট জীবনের কোলাহলে নর্মদা তীরের এই শান্তি যেন এক টুকরো সঞ্জীবনী। মায়ের এই মহিমা এবং তপভূমির আধ্যাত্মিক সম্পদ যদি আপনার হৃদয় স্পর্শ করে থাকে, তবে আমাদের তপভূমি নর্মদা পরিবারের সাথে যুক্ত হন। বাংলার ঘরে ঘরে এই ভক্তির আলো ছড়িয়ে দিতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার প্রতিটি আশীর্বাদ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। ভালো থাকুন, শান্তিতে থাকুন। আবার দেখা হবে মায়ের কোনো এক পুণ্যতটে। নর্মদে হর।